If you consider RPLI, sir, we have achieved our target and we have stood first among all the circles. This wouldn't have been possible without extraordinary achievements coming from all corners of the circle. In PLI also, sir, we have done reasonably well, but we have fallen short of our target by a tinker. So maybe this year we'll try our level best to compete with the PLI targets also. 2 points I would like to add, sir. Last year, if we are seeing the activation of sales force along all categories, direct agents, BOs, everyone, it's barely 40 to 50%. So if we are achieving our targets and giving such high performance with 40 to 50% of activation, we can just see what we can do with 100% activation. And this was a very clear sign from Secretary Ma'am also today, sir, that our sales force needs to be active. So this inactivation is those who have not done even a single premium in the whole last year. So this year we'll be monitoring you very closely. Secondly, sir, PLI online PLI premium has also started. So through IPP mode they can do online premium. And in West Bengal circle we have around 20 lakh IPP account. So that is our captive clientele. So I just want to tell all the sales agents, when if you're going ahead and you're trying to find new customers, also don't forget what our present clientele is already there. These are 20 lakh customers, and I don't think so more than 50% of them will have a PLI or an RPLI. So you can also focus on them. And there are so many initiatives that Directorate and the department has launched to give an impetus to the PLI and RPLI. From our circle side, under the guidance of Sir, we have recently launched an initiative to collect PLI and or RPLI premium from the doorstep of those customers who have failed to pay a premium and they have become an inactive customers. So under the guidance, sir, we have recently launched it last week and we are monitoring it very closely. Like our targets, there are two things. One is to get the new customers and the other is to hold on to the existing ones. So you are our ears and eyes. If you have any problems, please share it during the conference. And again, welcome everyone. Let us interact so that the insurance segment of our revenue, Thank you. Thank you so much, sir. So, ladies and gentlemen, now I would like to take this opportunity to invite on the dais respected Postmaster General Kolkata Region, Sri Ashok Kumar sir. We are very happy to announce that Ashok Kumar sir has joined us today at West Bengal Circle as Postmaster General Kolkata Region, and this is his first program here at Jogajog Bhavan. I would like to invite sir on the dais to kindly address us. Sir, please. परमादरणीय वेस्ट बंगाल डाक परिवार के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री नीरज कुमार सर, हमारे कलीग गौरव, यहाँ उपस्थित हमारे जितने जो सेल्स फोर्स के लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा अचीव किया है, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तो आज ही ज्वाइन किया हूँ इस सर्किल को, तो आज आते ही मुझे यहाँ के लीडर्स से मिलने का मौका मिल रहा है, मेरी खुशनसीबी है। ये सर्किल इतना बाहर से जितना हमने जाना है पिछले 25 सालों में, एसवी और पीएलआई के लिए ये गोल्ड माइन है, लेकिन जितने माइंस होते हैं उनका वैल्यू जब हम उसकी माइनिंग करते हैं तो रियलाइज होता है। तो आप हमारे सबसे बेस्ट माइनर्स हैं यहाँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने जो अभी हमारे डीपीए साहब ने कहा कि हम लोग तकरीबन जो टारगेट हमें निदेशालय से मिला था उसको हमने पूरा किया है। आरपीएलआई में बढ़ के किया है और पीएलआई में थोड़ा सा रह गए, तो दोनों मिला करके हमने पूरा किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर हैं वो अपने इस
विजनरी लीडरशिप के लिए कि उन्होंने ऐसा लीडरशिप दिया जिसमें कि ये टारगेट नॉर्मली टारगेट हमें ऐसा मिलता है ऊपर से जिसमें कि उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल ही टारगेट दिए जाते हैं, तो उसको भी आपने अचीव किया है सर आपकी लीडरशिप में। आप सब हमारे चीफ साहब और हमारे जो कलीग हैं डीपीएस साहब और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और साथ में उसका जो RPLI है, जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, वो इंडिया में मेरा ऐसा मानना है 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मेरा पूरा कंप्लीट रूरल बैकग्राउंड है। मैं पढ़ाई लिखाई करके आप मतलब इतना दूर पहुँचा हूँ, लेकिन दिल में और दिमाग में अभी भी मैं ग्रामीण परिवेश का ही अपने को मानता हूँ। भारत में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, डाक जीवन बीमा से बढ़िया कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। ये मैं किसी से आर्ग्यूमेंट डिस्कशन कर सकता हूँ और इसके कई सारे लॉजिकल और हिस्टोरिकल और कुछ बेनिफिशियल जो कारण है वो ये है कि हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि इसकी बराबरी कोई और कर नहीं सकता कोशिश करने से। इस 4-5 पॉइंट है। एक तो ये है कि अभी भी PLI का जो काम है उसके निदेशालय अलग से बन जाने के बाद भी ये हमारा सॉवरिन फंक्शन, सॉवरिन गारंटी के अंदर आता है। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसको सॉवरिन गारंटी है, जो अभी तक कंपनी नहीं बना है, वो और किसी के पास इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है। इकलौता हमारा ऐसा है डिपार्टमेंट जिसके प्रोडक्ट PLI के, उसको सरकार गारंटी देती है कि दुनिया कुछ भी हो जाए, सरकार कभी बैकरप्ट नहीं होती, क्योंकि उनको नोट छापने का, क्रिएट करने का आजादी होता है। तो आप जो भी प्रॉमिस जनता से करके आते हैं, हमारे कस्टमर से करके आते हैं, ये गारंटी है। उनको आप कह सकते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, है ना, ये डिपार्टमेंट रहे ना रहे, लेकिन जो कागज का टुकड़ा हम आपको दे रहे हैं, इसकी मान्यता जब तक नोट की रिजर्व बैंक की मान्यता है तब तक ये हमारे कागज की मान्यता है। ये गारंटी किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, ये आप कह सकते हैं, मुझे मेरा मानना है, सर ऐसे इसको बाद में क्वालिफाई करेंगे अगर मान लीजिए कहीं कुछ इसमें कंफ्यूजन होगा तो, कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस जो हम सर्विस में जाते हैं, इसको आप कह सकते हैं जनता से, जो आपके कस्टमर्स हैं, ये फ्री का हम इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं। क्योंकि जिनके पास भी सरप्लस पैसा है वही इंश्योरेंस कराते हैं। दो चीजें जरूरी है, एक तो सरप्लस है, सेविंग है, और दूसरा अवेयरनेस है ना। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो वो भी नहीं कराते। तो जो आपका कस्टमर है, कैचमेंट एरिया है, जो उनको आप ये कह सकते हैं कि ये इंश्योरेंस आपको मार्केट के हिसाब से हम फ्री का दे रहे हैं, बस आप लीजिए इसको। फ्री का कैसे दे रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न जो है वो एवरेज, अगर हम 10 साल का करें, 15 साल का करें, तो जो एवरेज एक लॉन्ग ड्यूरेशन का 15 साल का जो फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है, उसके बराबर या उससे कहीं अधिक हम उनको दे रहे हैं। तो बस उनको ये कहना कि आप एक तरह से फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हो, जिसको सरकार मान्यता दे रही है कि कहीं जाएगा नहीं, जो रिटर्न जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी, और जो इंश्योरेंस दे रहे हैं ये आपको हम गिफ्ट में दे रहे हैं, तो आप ये लीजिए, आप इंश्योरेंस में आएगी। दो चीजें हैं। इसको आप एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि ये क्यों संभव है। वो संभव इसलिए है कि अभी तो थोड़ा 2 सालों से इसको लिबरेट, 2-3-4 सालों से इसको थोड़ा कैचमेंट एरिया बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम ये जो इंश्योरेंस बेचते हैं, वो जो अभी तक का कैचमेंट एरिया या अभी भी जो हमारे पास, हमारे देश के जो बेस्ट कवर्ड हेल्थ वाइज, हेल्थ सिक्योरिटी वाइज, और खाना पीना और इंटरेस्ट वाइज, ये जो हमारा कैचमेंट का पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा हेल्दी हेल्थ की सुविधाएं, उनको बीमारी हेल्थ की सुविधाएं, खाना पीना उनका जितना अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा सेगमेंट हमारे पास इंडिया में नहीं अवेलेबल है। तो इस सेगमेंट को अगर हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फैटेलिटी सबसे कम होगा। और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, रिटर्न ज्यादा क्यों मिलता है? जहां फैटेलिटीज कम होगा, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हटा करके, वो सब पैसा हम लगाते हैं उसको डेवलपमेंट में पैसे की, और उसका मेजर खर्चा होता है जब हम बिल्कुल ऐसे लोग कर देते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिसमें डेथ की संभावना बहुत रहती है, बीमारी, डेथ छुपाने की, क्योंकि हम उसको हेजिंग नहीं मतलब करके करते हैं। तो इसीलिए हमारे लोग अच्छे हैं
हम उनको एफडी का ट्रीटमेंट भी इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी जो होता भी है ना कुछ, उसको भी हम ऐसे यूज करते हैं। मैं जहां भी रहा हूं कि जो भगवान, मृत्यु तो निश्चित है, एक और आप कहीं जाते हैं तो बोलेंगे दुनिया में निश्चित है जो मृत्यु ही है। अगर मृत्यु निश्चित है तो उतनी ही जरूरी इंश्योरेंस है, ये आप कह सकते हैं। तो फर्टिलिटी जो होती है, जो थोड़ी बहुत जो जरूरी है, वो भी हमारा पॉली फंड पे, जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम फंड है, उसके ऊपर लोड नहीं हम उसको मानते। हर कंपनी मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है, तो आप लोग भी अपना जहां जहां है, हम लोग आगे शो करेंगे कि जो कुछ एक दो केसेस होते हैं फर्टिलिटीज के, उसको हम इस रूप से रिटर्न करें, जो हमारे मतलब जिनको जो अनफॉर्चुनेट हमारे पॉलिसी होल्डर्स है, कि समाज को वहां के लगे कि नहीं, पोस्ट ऑफिस ने इनके यहाँ काम किया था, इन्होंने कुछ पोस्ट ऑफिस को पैसा दिया था। ये देखिए जब इनको समय आया है, कितना हैसल फ्री और हम उन तक पहुंच के उनको रुपया दे रहे हैं। हमारा डेथ उतना ही है जितना और कंपनीज एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करते हैं। और ये हमारा ये वाला एक्ट भी हम इम्प्लिसिटली कहा कि नहीं कर सकते, बट ये खर्चा उतना ही है जितना हम एडवर्टीजमेंट में कर रहे होते अगर एग्रेसिव होते तो। इस कारण से हमारा रिटर्न अधिक। कोई भी आपसे सवाल पूछेगा कि ऐसा क्या है कि इंश्योरेंस में आप बोलते हो कि एफडी का इंटरेस्ट आएगा, इसलिए एफडी का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हम बिल्कुल साउंड, अच्छी और लॉजिकल रीजन के साथ ये पॉलिसी कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो मुझे लगती थी वो मैंने आपसे शेयर किया, और भी बहुत बातें मैं अचानक से आया हूँ, बहुत सारी इमोशंस हैं। तो आप सब जो यहाँ पे हमारे विजेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने को अपना करके दिखाया है, उन सबको एक बार बहुत बहुत बधाई। और सर, मुझे अभी आने से पहले कागज दिया गया था कोलकाता रीजन का, और तो मैं वहाँ का लीडर हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो दिया है फिगर्स, वो जो टारगेट सर्किल ने दिए थे, जो हमारे कोलकाता रीजन के यहाँ पे लीडर्स हैं, जो विजेता लोग हैं यहाँ पे, जो अवॉर्डीज हैं, उनको मैं अलग से बधाई देता हूँ, क्योंकि हमें बताया गया है कि हम 100% से ऊपर पीएलआई में किए हैं और 112% आरपीएलआई में किए हैं। तो बाकी सर्किल के सबों को बधाई, और हमारे कोलकाता रीजन के जो हीरो हैं उनको और थोड़ी प्लस की बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for such an informative address. Ladies and gentlemen, now I would like to request respected Chief Postmaster General, West Bengal Circle, Sri Neeraj Kumar sir, to kindly guide us and enlighten us. Sir, please. PMG कोलकाता श्री अशोक कुमार जी, DPS हेडक्वार्टर्स श्री गौरव सिंगला जी, और उपस्थित मेरे सभी मित्रों, सर्वप्रथम आप लोगों को आपकी उत्तम उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। Congratulations to all the direct agents and other agents who work hard to make sure that the West Bengal Circle achieves its target in rural PLI especially, and also in the postal life insurance. My friend, the esteemed PMG of Kolkata region, has made some very interesting and insightful points. इन्होंने जो बात कही है वो हम सबों को सोचना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं कहीं पढ़ रहा था, इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कैसे प्रीमियम इनकम जो है बताते हैं, $100 बिलियन जो है सारी कंपनियां मिला के अर्न करती हैं। इसका यही मतलब है, और ये कहते हैं कि कुछ ही वर्षों में इंडिया दुनिया में 5वां या 6ठा बिगेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाए। इसका ये मतलब है कि हमारे कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत ही उपयुक्त जो कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं, जिसकी जानकारी थोड़ी बहुत पीएमजी साहब ने भी दी कि एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। जो आप देख सकते हैं, जो हमारी डेमोग्राफी है उसमें यंग लोगों का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है, और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी और बिजनेस में जो एम्प्लॉयबिलिटी है कुछ सालों से वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जो लोगों का जो यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से न सिर्फ हमारे कंट्री में लेकिन वेस्ट बंगाल सर्किल में भी बहुत ज़्यादा जो इंश्योरेंस के हिसाब से जो आबादी है वो है। इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज
सेक्रेटरी मैडम ने हम सब लोगों से डीसी लिया था और उनका ये कहना है कि जो भी हमारा PLI, RPLI और इवन सेविंग बैंक का जो फोकस होता है वो 80% से ज़्यादा रूरल एरिया में होता है और हम अर्बन एरियाज में जितना हमको फोकस करना चाहिए अभी हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसको इतना लिबरलाइज कर दिया गया है कि इट हैज बिकम लाइक एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय DLIC ऑफ इंडिया और अदर प्राइवेट कंपनी, जो उसको बार बार लिबरलाइज करके जो लिस्ट उसकी आप जानते हैं कि जो उसके एक्सटेंडेड क्लाइंटील जो बोलते हैं वो करके कितने सारे जो लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, कॉरपोरेट हैं, यहाँ तक कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको PLI के अंदर भी लाया जा सकता है। और इसकी ज़रूरत अब ये है कि हम ट्रेडिशनल रूप से जो सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और प्राइमरी टीचर्स को उनके पास जाके उनका PLI करा के हम आ जाएं, उसको थोड़ा हिम्मत करके आप जो मुख्य धारा है उसमें आपको कूदना पड़ेगा कि हम तो जंप। और लाइफ इंश्योरेंस को आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी के रूप में भी प्रेजेंट करें और जो आपका पॉलिसी होल्डर है उसके साथ पॉलिसी होने के बाद भी रिलेशनशिप बना के रखें। कब मेच्योरिटी हो रहा है, कब प्रीमियम पेमेंट ड्यू है। अभी आपको DPS साहब ने इन्फॉर्म किया कि प्रीमियम कलेक्शन एट द डोर स्टेप, उसको करने से कितनी सारी पॉलिसी जो रिवाइव हो जाएगी वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पॉलिसी होल्डर के लिए भी बहुत अच्छा एक चीज होगी। तो आप लोग इस पे ध्यान दें। इसलिए आज मैं आप सब जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको बधाई देता हूँ और साथ ही ये याद दिलाता हूँ कि हमें अभी बहुत कुछ करना है, स्पेशली अर्बन एरिया में। अब जाके हमारे पास एक काबिल लीडर PMG कोलकाता आ गए हैं, तो मुझे भरोसा है कि कलकत्ता रीजन स्वयं में ही बहुत ज़्यादा, बहुत मुख्य रूप से PLI में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि कलकत्ता भारत के काफ़ी वाइब्रेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसमें काम करने वालों का ग्रोथ काफ़ी हुआ है पिछले सालों में, जिनको हम लोगों ने अभी तक PLI के लिए अप्रोच नहीं किया है, हम उन्हें करेंगे। उसके साथ ही जो माइग्रेंट हैं, जहाँ की लो इनकम लेवल में भी लोग काम करते हैं, उन्हें भी हमको अप्रोच करना चाहिए और ये ऑप्शन देना चाहिए अगर वो क्वालिफाई करते हैं। साथ ही साथ रूरल PLI में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के नाम से कोई चीज़ चली थी। आज हमको ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विलेज जो है वो संपूर्ण बीमा ग्राम में RPLI के द्वारा आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत में भी कुछ अच्छे पॉइंट निकलेंगे और जो भी हमारे अवार्ड विनर्स हैं, प्राइज विनर्स हैं, वो जाके और भी मोटिवेटेड होके और भी अच्छा काम करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। जय हिंद। Thank you so much, sir, for guiding us and enlightening us. Ladies and gentlemen, now we would have some presentations on PLI, RPLI. To give the presentation, I would like to invite on stage Sri Shumit Shah, Development Officer, Darjeeling Division, to kindly put up his presentation. Shumit is going to present on the topic Promotion of PLI, RPLI in geographically challenging areas. I give it over to Shumit. Hello. Hello. Honorable Chief Postmaster General, West Bengal Circle, respected Postmaster General, Kolkata Region, respected DPS Headquarters, West Bengal Circle, respected ADM Madam, West Bengal Circle, I, Sumit Kumar Shah, would like to thank the circle team for giving me an opportunity to present before you a case study regarding postal life insurance
in the hills. I am from Darjeeling, and everyone knows that Darjeeling is known as Queen of Hills. Our respected Chief Postmaster General sir has visited Darjeeling several times, and he knows the geographical conditions that we have in Darjeeling. Darjeeling Postal Division, it comprises of two revenue districts, that is Darjeeling and Kalimpong. And since it is a hilly area compared to other parts of West Bengal, there are many challenges that we face in Darjeeling with respect to insurance procurement. Darjeeling is a district comprising of three subdivisions. First one is Darjeeling, second one is Kalimpong, and third one is Siliguri. And Siliguri being a plain area, we don't face much difficulty in procuring any business related to post office, whether it's insurance, whether it's savings bank. But the most challenging aspect comes in the hilly terrain of Darjeeling. Because the geographical condition of Darjeeling is such that we have to reach so many remote places where other facilities are not present. For example, banking facility is not there, transportation facility is not there. But as a development officer, as a member of this organization, we have many plans that we execute to procure business in terms of insurance. So, first of all, I'd like to tell about the division that we are concerning on. First, we have 225 post offices in Darjeeling Postal Division, out of which two are head office, 68 sub office, and 155 branch office. Next. So, I was appointed as a development officer in the year 2022, and from that year I took the challenge of procuring maximum business so that the annual target which is allotted to Darjeeling is achieved in due time. But also we fell short in many areas because of some challenges that were there. But every year we increase the sales force, because sales force are the backbone of the insurance that we are talking about, that is postal life insurance and rural postal life insurance. So in Darjeeling Postal Division, we have around 358 sales force, which are categorized as direct agents. We have 23. Then we have field officers. There are 2 field officers in Darjeeling Division. And we have GDS, that is 215 GDS sales force. And talking about departmental employees, the categories of different sales force are, we have 2 IPOs who are also working as departmental agents. Then we have HSDs and LSDs. There are 20 employees who have taken up agency of postal life insurance. We have 1 stenographer. We have 53 postal assistant and sorting assistant. Then we have 32 postmen who are working as sales force. And next we have, in coming few days, the numbers that you are seeing on screen will be increased. On direction of the divisional head, we have asked all the sub-divisional heads to enroll all the GDS for procurement of PLI and RPLI. আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।